Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेमी सलाम और वंदन। I greet all of you, and we consider this as a great privilege to come this evening before all of you with the Word of God. आप सबके सामने इस माध्यम के द्वारा वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद। I thank God for this page, Carmel Ministries, and dear Pastor Varghese Eapen and his family for inviting us to share the Word. हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस फेसबुक पेज के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, परिवार उनके कलीसिया के लिए। I believe you all are safe, and as we are proceeding to the Word of God, I request all of you to pray that God may speak to you. मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां कहीं भी है सुरक्षित है, परमेश्वर के पंखों के नीचे है और आप लोग प्रार्थना के साथ रहेंगे जैसे हम लोग वचन की ओर बढ़ते हैं। Let the Spirit of God guide us tonight. आज रात के समय पवित्र आत्मा हमें दोहराए। For tonight's devotion, आज रात के मनन के let's लिए turn our attention to हमारा ध्यान the book of Mark, Gospel of Mark, chapter 14, verse 66 to 69. हम लोग अभी परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 66 से लेकर आखिरी पदों तक। As Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came, and seeing Peter warming himself, he looked at him and said, "You also were with Jesus the Nazarene." But he denied it, saying, "I neither know nor understand what you are talking about." And he went out onto the porch. The servant girl saw him and began once more to the bystanders, "This is the one of them." But again he denied it. After a while, the bystanders were saying to Peter, "Surely you are one of them, for you are a Galilean too." But he began to curse and swear, "I do not know this man whom you are talking about." हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आगे आग तापते देख उससे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, "तुम भी तो उस नासरी यीशु के साथ था।" वह मुक कर गया और कहा, "मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूं कि तुम क्या बात कर रहे हो।" फिर वह बाहर टेवड़ी में गया और मुर्ग ना बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, "ये उनमें से एक है।" परंतु वो फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, "निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है।" तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, "मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता।" From this passage tonight, we want to share a short meditation to all of you. इस अध्याय के द्वारा इस जो हमने पढ़ा वचनों में से आज के दिन हम लोग मनन करना चाहते हैं। The title of the message is that how faith is your faith? How strong is your faith? इस संदेश का शीर्षक यही है कि आपका विश्वास कितना सामर्थ्य है। I believe this has a lot of significance tonight. मैं विश्वास करता हूँ इस रात के समय भी इसका बहुत महत्वपूर्ण विषय है। As we know that as it is the end time, the people are becoming cold in their faith. हम जानते हैं कि जब ये अंतिम दिनों के नजदीक आ रहे हैं, लोग अपने विश्वास में ठंडापन की अवस्था में आ गए। Many of the people, many of the servants of God, they are going behind. They are in an atmosphere of backsliding. हम देख सकते हैं बहुत लोग परमेश्वर के विश्वास से दूर हटते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। So tonight the word of God is asking all of you, putting forward a question, how strong is your faith? तो इसी प्रकार आज रात के समय परमेश्वर एक के आगे एक प्रश्न चिन्ह डालता है कि किस प्रकार आपका विश्वास बलवान है। Here we see about the Simon Peter. यहाँ पे हम लोग पतरस के बारे में देखते हैं। We know who is Simon Peter. हम जानते हैं शिमोन पतरस कौन है। He is one of the prime member of the group of the disciples. हम देख सकते हैं कि शिष्यों के झुंड में से एक खास स्थान पतरस के जीवन में था। He is actively involved in every activities of Christ. सारे यीशु मसीह के कार्यों में शुरुआत से लेकर हम देख सकते सारे कार्यों में वो तेजी से आगे बढ़ता We था। know that Jesus was in this world and he ministered for 3.5 years. हम जानते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में 3.5 साल तक सेवकाई किया। From the start to the end, this Peter was with him.
शुरुआत से लेके अंत तक पतरस उनके साथ था। So the one who know Christ well, तो एक व्यक्ति ऐसा है ये जो यीशु मसीह को सचमुच जानता था, and we know that he was one of the core persons among that group. और हम देख सकते हैं कि उस झुंड में, वो चेलों के झुंड में पतरस का स्थान एक मुख्य स्थान था। Jesus had 3 disciples who accompanied him everywhere. हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के साथ 3 चेले खास थे जो यीशु मसीह के साथ हर जगह जाते थे। And one among that 3 was Simon Peter. और वो 3 शिष्यों में से एक था सिमोन पतरस। And we see in the Bible that this Simon Peter is courageous. और हम वचन में देख सकते हैं शिमोन पतरस जो है वो एक हिम्मत वाला एक व्यक्ति He's है, very strong. वो बहुत बलवान है। There are many instances to say to you. ऐसा बहुत घटना है कि आज हम आपको बता सकते हैं। We see that when Jesus was walking over the sea, the Simon Peter is the one who took the decision or who took an action to go before Christ walking over the sea. हम देख सकते हैं जब चेलों जब समुद्र की ओर जाते थे, जब आंधी तूफान आई, सिमोन पतरस वो था व्यक्ति शिष्यों में से एक जो अपना पैर को आगे बढ़ाकर समुद्र में चलने So लगा। that shows his nature courageous. वो दिखाता है कि वो हिम्मत जो पतरस के जीवन में है। Again we see that he is the one who cut the ear of the servant of the high priest. और हम देख सकते हैं एक और जगह में घटना ऐसा हुआ है जहां पर उस महायाजक के दास को ये पतरस जो है गुस्से में के कान को काट डालता। Amen. That also shows the virtue of his courageous. वो भी उस घटना में यही बताता है, दर्शाता है पतरस का हिम्मत के बारे में। Even we know another instance that he is the one who proclaimed that Jesus is the Son of God. और एक और जगह हम देख सकते हैं कि वो ही है जो घोषणा करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। You know, that indeed needs a courage. सचमुच इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। Because nobody would be dared to call or to say that Jesus Christ is the Son of God at that time. क्योंकि उस समय कोई भी नहीं था जिसके अंदर वो हिम्मत था, धैर्य था, जो बोल सकता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। If somebody says so, they would be stoned by the Jews authorities. अगर ऐसे कोई बोलता तो यहूदियों का जो लोग है, अधिकारी लोगों के द्वारा उन लोग के ऊपर पत्थर डालते। So throughout the Bible we see Simon Peter is courageous. He's active. प्यारो, तो ऐसा पूरा वचन पढ़ते समय में मालूम पड़ता है शिमोन पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ता But है। now we see here in this passage that when he encountered a woman, लेकिन हम लोग ने जो अभी भाग पढ़ा वहां पे पतरस जब एक स्त्री के सामना करता a है, servant woman of the high priest, वो महायाजक के दासी का सामना करता है। when she said that you are one of that person, one among that person, जब वो दासी ने कहा कि तू तो उस नासरी यीशु के साथ रहने वाला he है, became afraid. वो डर गया, He was frightened. वो डर गया He started denying Christ. और वो यीशु मसीह को ठुकराने लगा। Let me challenge you, let me ask you tonight, how strong is your faith in Christ? प्यारो, मैं आज रात को एक सवाल आपसे कहता हूँ, पूछता हूँ, आपका जो विश्वास यीशु मसीह में है वो कितना ही बलवंत है। Maybe all of us could say that, Lord, my faith in you is strong tonight. कई बार हम लोग बोल सकते होंगे कई लोगों को कि परमेश्वर आज रात का तो मेरा विश्वास आपके लिए दृढ़ है। At present you could say that, Jesus, I love you, I have strong faith in you. You could say tonight. अभी के लिए, अभी रात के समय के आप लोग बोल सकते होंगे कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, तू सच्चा है, मैं तेरे पर विश्वास करता हूँ। When you listen to this message, when you hear a sermon, you can say that. एक वचन को सुनते समय आप शायद बोल सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, But God is asking you, लेकिन परमेश्वर पूछता है, what about when you face a circumstance? What about you face a trial? What about when you face a problem in your life? परमेश्वर का सवाल यहाँ पे है, जब आप कोई परिस्थिति का सामना करते हैं, कोई पीड़ा का सामना करते हैं, उस समय क्या है आपका स्थान? Would you be able to say that Jesus is my Lord? उस समय क्या बोल सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है? When the persecutors come, would you be strong enough to proclaim the faith you have? वो पीड़ा देने वाले जब हमारे खिलाफ आएंगे तभी क्या आप घोषणा कर पाएंगे आपका विश्वास को? See, Peter was strong, a person who was courageous, but at this present time, he said, I do not know that person. प्यारो, हम देख सकते हैं पतरस जो उतने सालों तक हम देखते हैं उसके जीवन में कि वो एक हिम्मत का जीवन जीने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन इस एक घटना के समय पे वो डर गया। During the course of time, people change. एक समय के बाद लोग बदलते हैं। Isn't it, my brothers and sisters? ऐसा है ना मेरे प्यारे भाई और बहन? Hallelujah. Hallelujah. We have seen many strong men and women of God.
हमने बहुत सारे परमेश्वर के बड़े महान दास दासी को देखे हैं whom we expected they would do wonders for God. हमने ऐसा विश्वास सोचा था कि वो आने वाले दिनों में अद्भुत कार्य करने वाले But at the हैं course of time, they failed. They have fallen. लेकिन समय बीतते बीतते वो लोग गिर गए You know, I want to read a passage from the Bible, मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ Luke chapter 18, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय verse 8. उसका 8वां पद Jesus is saying this verse. यीशु मसीह वहां पे कहता है The verse says like this: I tell you that he will bring about justice for them quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? वहां पे ऐसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार 18 उसका 8वां पद में, मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। So Jesus is putting forward a question: will he find faith when the Son of God comes? तो वहां पे जो है एक सवाल को परमेश्वर रखता है, वो ये है तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। See, even the tense, it is future tense. वहां पे हम देख सकते हैं कि वो भविष्य काल के विषय में है। See, Jesus is not concerned. He is not interested to hear what you say now. He wants to hear how you will be tomorrow. प्यारो यहाँ पे देख सकते परमेश्वर ये नहीं देता कि अभी तुम क्या करोगे, सवाल यहाँ पे कि भविष्य काल में आप कल के दिन में क्या करोगे। Now you are in your safe zone. Now you are in your comfortable zone. It is possible for you to say that I love Jesus. I would be standing for my faith. It's easy for you to now say. प्यारो शायद अभी आप जो एक आराम की जिंदगी में होंगे या फिर अभी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता होगा, तो इस कारण आप बोल सकते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं और मेरा विश्वास यीशु मसीह पर दृढ़ है। But God asking, लेकिन परमेश्वर पूछता है what about tomorrow? कल के बारे में क्या है भाई, What about 5 years after? 5 साल के बाद क्या है भाई, What about like if you have received a promotion in your job? अगर आपको आपके काम में अगर प्रमोशन मिला तब क्या है। Now if you are in a village and if God is promoting you to another city, how will be your nature? Will you love God? आपको अगर एक गांव में से परमेश्वर एक शहर में लेके जाते तभी भी क्या परमेश्वर से वही प्यार करेंगे। If God, is proceeding you to another big cities, will you have the same faith in God as you have now? क्या अभी आपको जो परमेश्वर का वो प्यार है, वो परमेश्वर अगर आपके स्थानों को बदलता है तभी भी वो प्यार रहेगा क्या। Dear brothers and sisters, this is what Paul says in Romans 8. We see that Paul says, neither the present nor the future can separate me from the love of Jesus Christ. प्यारो इसीलिए तो रोमियों के पत्री में 8वां अध्याय में हम देख सकते हैं, इसीलिए आज हो कल हो या भविष्य काल में जो भी आए वो मेरे जीवन में से परमेश्वर के प्यार को हटा नहीं सकता। Not only the present things can separate, but also neither the future things cannot separate me. मेरा अभी का समय का कुछ भी बातें भी नहीं, इवन मेरा जो भविष्य काल में जो होगा वो भी मुझे मेरे परमेश्वर से प्यार से अलग नहीं कर Let's सकता। take this as a challenge in our life and let's proclaim that yes Lord, we have a strong faith in you and nothing in the world can separate us from the faith we have in you. प्यारो ये एक चुनौती के समान हम लोग आज रात को ले कि प्रभु जो भी अवस्था परिस्थिति भविष्य काल में भी क्यों ना आने पाए, लेकिन मैं अपने विश्वास में नहीं हटने वाला, दृढ़ पकड़ कर रहूंगा। We see in the scripture about the 3 young Hebrew men. हम लोग जो वचन पढ़ते समय जो इब्रानियों के वो जवान लड़कों के बारे में पढ़ते हैं। See, they were asked to bow before the idol. उनको बोला गया था कि वो बड़े मूर्ति के आगे नमन करने के लिए। They said they won't. और उन्होंने बोला नहीं करेंगे। And you know what? They have seen the power, the strength of the fire be increased 7 times. और वो लोगों ने उनके आंखों के सामने देखा कि वो आग की भट्टी जो है 7 गुना तेजी से बढ़ा दिया। But still they say that we would never deny our Lord. लेकिन तब भी वो जवान लड़के कहते हैं कि हम हमारे परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। Whatever happens, जो कुछ भी होने दो। even when they see the power of the fire is being increased 7 times, उन लोग देखते भी है कि वो आग का भट्टी जो 7 गुना बढ़ा भी दिया है, that couldn't shiver them, that couldn't scatter the heart. उनके हृदय को वो तोड़ा नहीं प्यारो। They were not challenged. उन लोगों को चुनौती नहीं दी था वो। They still said, उन्होंने तभी भी कहा, even if my Lord our God redeems us, we will not bow before thy idol. परमेश्वर लोग कहते हैं कि हमारा परमेश्वर में बचाए या ना बचाए फिर भी हम उस मूर्ति के नमन नहीं करेंगे। Dear brothers and sisters in Christ, परमेश्वर में मेरे प्यारे भाई बहन, God is putting forward a question to all of you tonight. How strong is your faith? परमेश्वर आप एक एक के जीवन पे एक सवाल को आज रख रहा है, वो यही है कि आपका विश्वास कितना ही बड़ा है। Amen. Church,
God is asking, how strong is your faith tomorrow when you will face, persecutions in your life? मुझे सुनने वाला प्यारे कलीसिया, आपसे परमेश्वर का सवाल ये है, अगर आपके कलीसिया के विरोध लोग खड़े होंगे, तकलीफें बढ़ेगी, पीड़ा बढ़ेगी, तभी क्या कलीसिया आपका हिम्मत, आपका जो विश्वास है वो आप हिम्मत के साथ सामना करेंगे क्या? Amen. Let us go forward. हालेलुया, आगे बढ़ेंगे। Amen. Now here we see that, हम यहाँ पे देखते हैं, the people are identifying the Simon Peter is a person with Jesus Christ. हम ऐसा देखते हैं कि वहां पे लोग इस प्रकार से पतरस के पहचानते हैं कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ रहने See, वाला let me है। tell you one thing. मैं एक बात आपको बताऊं, Amen. You are always identified a person with Christ. देखो आप सबका पहचान यीशु मसीह के साथ है। Amen. You are a person identified with Christ. आप ऐसे एक व्यक्ति हो जिसका पहचान यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। See, Peter, Simon Peter, the whole people know him as a person with Christ. देखो सीमोन पतरस जो है एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारे लोग पहचानते हैं, जानते हैं कि यीशु मसीह के संग रहने वाला। I want to tell you there is a negative part as well as a positive part about this. इसका जो है एक नकारात्मक और सकारात्मक बात है करके मुझे बताना है। You know what is the negative part? उसका नकारात्मक बात क्या है पता है? See, there are three things that is being noticed in this passage. ये जगह में हम तीन बातों को देख सकते हैं। Number one, पहली बात, they say that वो लोग कहते हैं you are with Jesus. कि आप यीशु के साथ हो। Number two, दूसरी बात, they say that लोग कहते हैं you are one among them. कि तुम उनमें से एक हो। And the number three, they say that और तीसरी बात वो कहते हैं you are a Galilean. कि तू एक गलीली भी है। So they are saying three things about Simon Peter. तो वहां पे लोग तीन बातों को शिमोन पतरस के बारे में कहता है। Number one, पहली बात you are with Jesus. कि आप यीशु के संग हैं। Number two, दूसरी बात, you are with them. आप उन लोगों के साथ हैं। Number three, तीसरी बात, you are a Galilean. कि तू एक गलीली है। So I want to say there are some negative things and positive about these three things. प्यारे, तो इस तीन बातों में एक नकारात्मक और सकारात्मक बातें भी है। First they said, पहले उन्होंने कहा, Simon Peter, शिमोन पतरस, we know you. मैं तुझे जानता We हूँ, have seen you with Jesus. हमने देखा है तुझे यीशु मसीह के साथ। You know what is the negative thing? उसका नकारात्मक बात क्या पता है? When a person walking with Christ go behind, it puts shame for Christ. यही है प्यारो, जब यीशु मसीह के साथ चलने वाला कोई व्यक्ति पीछे हट जाता है, भटक जाता है अपने मार्ग से, वो यीशु मसीह के नाम में एक लज्जा का कारण बनता है। Why the Bible, why the scripture always says us to be holy? क्यों परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमेशा हमें पवित्र बनने के लिए कहता है? Why the word of God says to walk in light? क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति में चलो? As the people, the world will not point to you. प्यारो, दुनिया के लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, They will not accuse you. वो आपके ऊपर निंदा नहीं करेंगे। Because if once they accuse you, indirectly, they are accusing the person whom you are with. लेकिन देखो प्यारो, जब वो लोग आपके ऊपर उंगली उठाते तो है, लेकिन जान लेना वो उंगली जो उठाते सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आप जिसके संग रहते हो उनके पहचान को जानते हो, उनके ऊपर होता है। See, suppose some fault have happened from my side. ध्यान दीजिए, अगर मेरे साइड से, मेरे तरफ से कोई गलती हुई, The world will not identify me with as an individual, as a single person. लोग जो है, दुनिया जो है, मुझे एक प्रत्येक तौर पे एक व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से नहीं देखेंगे। But my Savior's name will be shamed in front of the society. लेकिन मेरे साथ जो है, मेरा उद्धारकर्ता का नाम भी इस दुनिया के लोगों के सामने लज्जा का कारण हो जाता I है। am bringing the name of Jesus to be ashamed in front of the society. पूरे दुनिया के सामने मेरे काम के वजह से जो है, यीशु मसीह का नाम के ऊपर लज्जा का कारण ठहराता है। Amen. And number two, दूसरी बात, they say that वो लोग ऐसा कहते हैं, you are one among them. आप उन लोगों के बीच के हो। Let me tell you, my dear brothers and मैं sisters, जरा आपको बताऊं प्यारे भाई, when something happens in our life, जब हमारे जीवन में कुछ होता है, you know, that brings a great shame to the group, I mean the church. हमारे एक जन के जीवन से कुछ होने पर वो पूरे कलीसिया को भी असर करता है। See, we have seen many examples all over the world, even around us. हमने बहुत प्रकार के उदाहरण हमारे आसपास हमने देखा है। When something happens, जब कुछ होता है, the whole people would say, society would say, पूरे दुनिया के लोग ऐसा कहते हैं that person is attending that church. कि वो जो व्यक्ति ने जो गलत किया, पाप किया, वो तो उस कलीसिया का भागीदार है। That person is a member of that church. वो भागीदार है उस कलीसिया का। So the whole world is identifying you
as a member of a group or a church. मतलब आपको आपका पहचान पूरे दुनिया में जो एक कलीसिया, एक झुंड के लोगों के साथ लगा हुआ है। So what happens when I fail, when something happens in my life, when I commit a sin? What happens actually? तब क्या होता है प्यारो, जब मैं अकेला या मेरे जीवन में कोई गलती करूं तो क्या होता है? See, I bring shame to Jesus as well as to the community, to the church. प्यारो, मेरे गलती, मेरे पाप की वजह से मैं मेरे परमेश्वर उद्धारकर्ता के ऊपर भी दाग लगाता हूँ, उनका भी लज्जा देता हूँ, लज्जित बात करता हूँ। साथ ही साथ यीशु मसीह के साथ मैं जिस कलीसिया के साथ हूँ, जिस झुंड में हूँ, उस झुंड का भी शर्मिंदगी की बात होती है। Amen. And number 3, they say that, तीसरी बात वो लोग कहते हैं, oh Simon Peter, you are a Galilean. कि तू तो गलीली भी है। See, I was surprised. मैं तो सचमुच वहां पे अचंभित हो गया। How did the people knew he was a Galilean? वहां के लोग को कैसे मालूम पड़ा कि ये गलीली की है? See, Simon Peter thought that nobody knew him. साइमन पतरस ने सोचा होगा कि कोई मुझे जानता नहीं। He's a normal, ordinary fisherman. वो एक साधारण मछुआरा है। He thought nobody is recognizing him. उनको लगता था कि कोई मुझे पहचानेगा He नहीं। thought nobody knew him. वो उसको लगा कोई मुझे जानेगा नहीं। But let me tell you, my dear brothers and sisters, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे भाई बहन, if you are the follower of Christ, अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं, the whole world is looking at you. पूरा दुनिया का नजर आपके ऊपर है। You might be thinking you are from an ordinary family, nobody is noticing you. आपको लगता है कि आप कोई साधारण परिवार से, कोई आपके ऊपर देखता भी नहीं करके। Who cares? कौन देखेगा? Who cares about my life? मेरे जिंदगी का किसको क्या है? Who cares what I do? मैं कुछ भी करूं, उन लोगों को क्या है? Who cares what I do in my secret life? मेरे रहस्य जीवन में मैं कुछ भी करूं, उसमें क्या जाता है? Let me tell you, मुझे सुनने वाले प्यारे, मैं आपको if बताऊं, you are a follower of Jesus, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति है तो like a CCTV camera, एक सीसीटीवी कैमरा के जैसा the whole world is focusing upon you. पूरा दुनिया का नजर आपके ऊपर है। Your walk, आपका चाल चलन, your talk, आपकी बोली, everything is being noticed. सब कुछ देखा जाता है। See, Simon Peter, an ordinary fisherman who never thought that the world will know him, एक शिमोन पतरस जो एक मछुआरा था, एक साधारण मछुआरा, इसको लगे कोई मुझे जानेगा नहीं। but see here, the people even know where he was from. यहाँ पे देखो प्यारे, वचन पढ़ते से मालूम पड़ता कि यहाँ के लोग को पता था कि शिमोन पतरस कौन से गांव से भी है। They say that not only you are a person, you are a disciple of Jesus, but even they say that you are a Galilean. They even know the address of Peter. प्यारो, यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग सिर्फ ये नहीं कहते कि पतरस तू तो यीशु मसीह के साथ रहने वाला यीशु मसीह के चेला है, वो लोग ये भी कहते हैं कि पतरस तेरा एड्रेस जो है, तू कहाँ का है, वो तक हमें पता है। So something happens in our life. तो प्यारे, जब हमारे जीवन में कुछ होता है, Where it all it affects. कहाँ वो जाके भाग लेता है? Number 1, पहली बात, the name of Christ, यीशु मसीह के नाम में, the church, वो कलीसिया, even in the society. और साथ ही साथ पूरे दुनिया में। Amen. When something happens in my life, the society, the gospel, the door of the gospel shall be closed in our society. प्यारो, जब मैं कोई गलती करूं, तभी वो उस गलती के कारण पूरे मेरे शहर में, मेरे गांव में सुसमाचार का द्वार बंद हो जाता है। See, many of the servants of God might face this situation. कई बार ऐसे सेवक लोग ने ये बात को देखा होगा। They will go to some place to say about the gospel, लोग कई जगह में जाते हैं वचन को बांटने, but they cannot open their mouth लेकिन उन लोग अपने मुंह को खोल नहीं सकते, because the society, the people would say that क्योंकि वहां के लोग ऐसे कहेंगे, we know a person who is with Christ, हम जानते हैं एक व्यक्ति को जो यीशु मसीह के साथ we है, know a Christian, हम एक ईसाई को जानते he हैं, is not good, वो तो अच्छा नहीं he है, do that, वो तो वो करता है, गंदा काम करता है, he go there. वो तो उस गंदी जगह में जाता है। See what happens, the door of the gospel in that place is being shut. उस गलती के वजह से उस सुसमाचार का दरवाजा उस जगह में बंद हो जाता I है। encourage all dear brothers and sisters, आज मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहन, मैं आपको प्रोत्साहित करूं, me and you are not the persons who close the door to the gospel. मैं और आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने का दरवाजा को बंद करे। We are the one who opened the way for Christ in our society, in our neighborhood. Hallelujah. प्यारो, हम लोग जो है सुसमाचार के द्वार को खोलने वाले लोग हैं। Amen. Hallelujah. Now I said about the negative things. अभी मैंने नकारात्मक बातों को बताई, What are the positive things? सकारात्मक बातों को देखेंगे जरा। Amen. They said that, उन लोगों ने कहा, Simon Peter, we have seen you with Jesus. कि शिमोन पतरस, मैंने तुझे देखा है यीशु मसीह के साथ। So you are with Jesus. तो आप यीशु मसीह के साथ हैं। That means
उसका मतलब he is not alone. कि वो अकेला नहीं। Let me tell you, my dear brothers, मैं बताऊं जरा प्यारे भाई, you are not alone. आप अकेले नहीं। There is a Lord. एक परमेश्वर है, There is a Lord. एक परमेश्वर है। You have a Lord and Savior. आपका एक परमेश्वर, एक उद्धार करता है। Simon Peter, they say that you have a master. सिमोन पतरस वो लोग तुझे देख के कहते कि तेरा एक स्वामी है। Amen. Hallelujah. When the world recognizes you and me as a person with Christ, they say that we have a Lord and that Lord is Jesus Christ. यारो, जब दुनिया वाले कहते कि तुम यीशु मसीह के साथ जीने वाले हो, उसका मतलब हम अकेले नहीं, हमारे साथ यीशु मसीह है, परमेश्वर खुदा है। Amen. Let me go forward. Number 2, they said that दूसरी बात उन्होंने कहा you are one among them. कि तुम उनमें से एक हो। What does that mean? उसका मतलब क्या है प्यारो? There is a group behind you. आपके पीछे एक झुंड है। Yes, there is a group behind you. आपके पीछे एक झुंड है। I would name it church. मैं उनका उस झुंड को बोलूंगा, नाम दूंगा चर्च, कलीसिया। How many of you feel fortunate to be inside church? कितने लोगों को लगता है कि ये भाग्यशाली की बात है कि मेरे पीछे मैं कलीसिया का अंग हूँ। Amen. We are so fortunate to have a praying church behind us. प्यारो, हम लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे पीछे प्रार्थना करने वाले कलीसिया है। Brothers and sisters, you are not alone. There is a praying church behind you. मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहन, आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे आपके लिए प्रार्थना करने वाले कलीसिया है। You have not only the support, the heavenly support, but you have the prayer support of a church, of a group. प्यारो, आपके पास सिर्फ स्वर्गीय मदद नहीं है, बल्कि आपके साथ स्वर्गीय मदद के साथ आपके पास कलीसिया का प्रार्थना का मदद भी है। So they say you are one among them. There is a group. पर जब लोग कहते कि तुम उनमें से एक हो, मतलब आपके पीछे एक झुंड है। Yes, we have a group. सचमुच हमारे लिए एक झुंड है। We are in a group. हम एक झुंड के अंग है। The church, वो है कलीसिया, the praying church, वो प्रार्थना करने वाले कलीसिया, the supporting church, वो मदद करने वाला कलीसिया, the empowering church. वो जो प्रोत्साहन देने वाले कलीसिया। Hallelujah. हालेलुया। If that church is behind us, we shall step forward. अगर उस प्रकार का कलीसिया हमारे पीछे है, हमारे साथ है, तो हम तो हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। Believe it or not, आप विश्वास करें या ना करें, you are identified as a person among them. जान लो आपका पहचान उस झुंड में से एक करके जाना जाता है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. So when something happens, remember that brings shame, as well as when something positive happens, that bring glory to that church. प्यारो, जान लेना, जब हम कुछ गलत काम करें, वो कलीसिया के लिए लज्जा का कारण बनता है। साथ ही साथ जब आप कुछ अच्छा काम करें, वो कलीसिया के लिए एक सम्मान का, आदर का काम बनता है। Now let me go forward. आगे बढ़ेंगे। Now they say that you are a Galilean. उन लोग कहते हैं कि तू तो एक गलीली भी है। Amen. I said about the negative thing. मैंने नकारात्मक बातों को बताया। Now let me tell you the positive thing. मैं सकारात्मक बात को बताऊं। God is going to enlarge your boundaries. परमेश्वर आपके सीमा को बढ़ाने वाला है। You're walking with Christ. आप मसीह के साथ चलते हो। Simon Peter, did anybody knew you before? शिमोन पतरस, क्या कोई भी तुझे जानता था पहले? Did anybody knew you before? कोई जानता था तुझे पहले? Did you had any significance in life? तेरे जीवन में कुछ भी मूल्य की बात थी क्या? No. नहीं। Your life started. तेरा जीवन का शुरुआत, People found you पर लोगों ने तुझे ढूंढ निकाला the moment Jesus found you. जब यीशु मसीह ने तुझे ढूंढा। Isn't it, my brothers and sisters? ऐसा ही है ना मेरे प्यारे भाई बहन? Amen. Till the moment Jesus found Simon Peter, did anybody knew about him? यीशु मसीह शिमोन पतरस को ढूंढने से पहले, उनका मिलन वहां पे होने से पहले, क्या कोई दुनिया में शिमोन पतरस को जानता था? Nobody cared about his life. उसके जीवन के बारे में कोई ध्यान नहीं देता था। Nobody cared where he was. वो कहाँ भी जाए कोई ध्यान नहीं देता था। The struggle he had. उनका जो तकलीफ था वो भी, He might have had many nights where he couldn't get a single fish. एक कई रात हो जाता होगा जहाँ पे उनको एक भी मछली नहीं मिला। But those days had no significance. लेकिन वो उन दिनों का कोई भी महत्वपूर्ण की बात नहीं था प्यारो। But now this person is being identified. लेकिन आज अभी ये जो व्यक्ति है उसका एक पहचान है। The world says, दुनिया कहती है, I know from where you are. मैं जानता हूँ तुम कहाँ से हो। You are a Galilean. तुम तो गलीली से। How come the people know a simple person, an ordinary fisherman, from where he was? कैसे कोई साधारण मछुआरे को लोग कैसे जान सकते कि वो किस जगह का है? I tell you, मैं बताता हूँ।
Amen. God is going to extend your boundaries. परमेश्वर आपके सीमाओं को बढ़ाने वाला है। Yes, this is what happens. Amen. This is what happens when you're following Christ. This is also that thing that would happen in your life. आप जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हो, आपकी उनकी जिंदगी के पीछे आप हो लेते हैं, ये सारी बातें भी आपके जीवन में होता है। You don't have to follow for this behind Christ, but this will accompany you when you follow Jesus. यार ये सब बातों के लिए यीशु मसीह के पीछे चलने का नहीं, लेकिन आप जब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, ये पीछे पीछे खुद आ जाता है। Amen. Now, amen. As my time is proceeding, hallelujah. So we see here, Simon Peter is denying Christ thrice. हम यहाँ पे देख सकते हैं शिमोन पतरस जो है 3 बार यीशु मसीह को ठुकराता है। And he heard the rooster crows. और वो सुनता है कि मुर्गा का आवाज। Amen. And we see in the 72 verse, we see that. और हम लोग यहाँ पे 72वां अध्याय वचन में देखते हैं, After he denied Christ, जब यीशु मसीह को ठुकराने के बाद he began to weep. वो रोने लगा। He began to weep. वो रोने लगा। He repented. वो जो पश्चाताप करने लगा। Let me tell you. मैं आपको बताऊं, This is the moment that changed the life of Peter. वो एक समय है जहाँ पे पतरस का जीवन बदल गया। Mistakes happen. गलती तो हुआ। In my life, in your life, in anybody's life, mistakes will happen. मेरे हो, आपके हो, किसी के भी जीवन में, मनुष्य के जीवन में गलतियां तो होगी। But what was the revolutionary action by Simon Peter? लेकिन वो बड़ा बदलाव का कारण शिमोन पतरस ने क्या किया? When he knew that he was mistaken, he started to weep. प्यारो, जब पतरस को समझ में आ गया उसकी गलती, वो रोने लगा। Brothers and sisters, are you ready to cry in the presence of God? भाई बहन, क्या आप तैयार है परमेश्वर की उपस्थिति में रोने के लिए? Are you ready to repent of your sins? आपके पाप के लिए पश्चाताप करने तैयार हो क्या? Then I want to give you a glad news that Jesus is ready to accept you again back to him. पर मैं आपको खुशखबरी दूं, यीशु मसीह तैयार है आपको वापस स्वीकार करने के लिए। And when he wept and cried, he repented about his sin. जब पतरस रोकर अपना मन फिराया अपनी गलतियों से, You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? The same mouth that denied Christ, वो ही मुंह जो यीशु मसीह को ठुकराया, the same tongue that denied Christ 3 times, वो ही जीभ से जिस व्यक्ति ने 3 बार यीशु मसीह से मुकरा गया, after some while, थोड़े समय के बाद the same tongue proclaimed that Jesus is the Lord. वो ही जीभ से घोषणा किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। The same tongue that denied Christ in front of a servant girl proclaimed that Christ is Lord between 3,000 men. प्यारो, एक व्यक्ति जिसके जीभ के द्वारा एक दासी के सामने यीशु मसीह को ठुकराया, वही जीभ से, वही व्यक्ति से परमेश्वर उनको उपयोग कर 3,000 लोगों के सामने वो कहता है कि यीशु मसीह प्रभु है। He was frightened. वो डर गया था। He was afraid. वो भयानक तौर पे आ गया था। Not by seeing a huge crowd. उसका डर एक झुंड को देखकर नहीं था। But when he faced a woman, a girl, a servant girl, he was afraid. एक दासी के सामने वो डर गया। But now, लेकिन अभी he's standing in front of 3,000 people. 3,000 लोगों के सामने वो खड़ा है। The same tongue, वही जीभ, the same mouth, वही मुंह, who said, I do not know Christ. जिसने कहा कि मैं नहीं जानता मसीह को। Who said, I am not one among that group. जब किसने कहा, उसने कहा कि मैं उस झुंड का नहीं हूँ। You know what he says now? पता है वो अभी क्या कहता है? He says like this. वो ऐसा कहता है, Acts chapter 2 verse 32. प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय का 32वां पद में, This Jesus God raised up again. इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, And we are witness. जिसके हम गवाह हैं। We have seen with our own eyes that he is being raised. हमने हमारे आंखों से देखा है कि यीशु मसीह जी उठा है। Hallelujah. हालेलुया। Before he was afraid to say that he was a disciple of Jesus. प्यारो, थोड़ा समय पहले वो व्यक्ति डर के मारे बोल भी नहीं था कि वो यीशु मसीह का चेला है। But now he says that लेकिन अभी वो कहता है, we not only see that he was crucified, but we have seen his glorious resurrection. प्यारो, अभी ये व्यक्ति सिर्फ ये नहीं कहता कि मैंने यीशु मसीह का क्रूसीकरण को देखा है, बल्कि वो ये भी कहता है कि मैंने देखा है मेरा यीशु मसीह जिंदा हो गया है। We have seen his glorious body. मैंने उनका महिमामय शरीर को देखा। We have seen his risen body. मैंने उनका जी उठा हुआ शरीर को देखा। And we have even seen
that he is ascending to the heavens. और साथ ही साथ वो स्वर्गारोहण भी हमने देखा है। The person whom you crucified, जिस परमेश्वर को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, he is not now in the tomb. वो अभी कब्र में नहीं है। He is not now in the Hade. वो अभी कोई पाताल में नहीं है। He is now in the heavenly realm. वो स्वर्गीय जगह में है। He is risen वो जी उठा है and he have ascended to the heavens. और वो स्वर्गारोहण कर दिया है। And we are the witness. We have seen with our own eyes. और इन सब बातों के हम लोग गवाह है। You know what I was about to say? मैं क्या बताने वाला था प्यारो? The same tongue. वही जीव, The same tongue वही जीव that denied Christ for 3 times. जो यीशु मसीह को 3 बार टुकरा दिया। That same Peter, वही पत्रस, the same Simon Peter, वही सिमोन पत्रस, he proclaimed, वो घोषणा करता है, he proclaimed वो घोषणा करता है that Jesus Christ is Lord. कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Church, let me remind you, प्यारे कलीसिया में आपको याद दिलाऊं, how strong is your faith right now? अभी आपका विश्वास कितना ही बलवंत है। Amen. How strong is your faith right now? किस प्रकार है आपका विश्वास अभी इस समय? How will you be when you face a trial? एक समस्या आने में आप किस प्रकार होंगे? How will you stand when persecutions come? जब तकलीफ आएंगे तभी आप किस प्रकार खड़े होंगे? When some group is coming, some mob is coming to attack you, how will you stand? जब कोई झुंड आपके खिलाफ आता है लड़ाई के लिए, आप किस प्रकार खड़े होंगे? Will you deny the faith? क्या आप आपका विश्वास को टुकरा देंगे? Will you run away? क्या आप वहां से भाग जाएंगे? Or will you stand straight and proclaim, we are the witness of His majesty? क्या आप दृढ़ता के साथ खड़े रहकर बोलेंगे कि मेरा विश्वास, हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं? Amen. I believe these verses, this word have put a challenge in your life. मैं विश्वास करता हूँ ये वचन ने आपको चुनौती दी है। Let's close our eyes. हम आंखों को बंद करें, Let's pray for a moment. एक क्षण प्रार्थना करेंगे। Lord, we pray tonight. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, Increase our faith. हमारे विश्वास को बढ़ा। We have seen in the scripture the burden of Christ. हमने वचन में देखा कि परमेश्वर का वो वचन, वो Jesus बोझ को is praying or asking, यीशु मसीह पूछता है, when the Son of Man comes, जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, will he find faith in the world? क्या इस दुनिया में वो विश्वास को देख पाएगा? There is a question. एक सवाल है प्यारो, That's the burden of Christ. वो परमेश्वर की बोझ है। Jesus is not asking about your present today. यीशु मसीह आपका अभी के वर्तमान बातों को नहीं पूछता। He's not interested to hear what you feel now. वो नहीं जानना चाहता कि अभी आप क्या महसूस करते हैं, But he wants to hear your decision. What will you be tomorrow? लेकिन परमेश्वर आपके एक निर्णय को सुनना चाहता है कि आप कैसे होंगे आपके भविष्य में। Father, we pray that. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते Give हैं, us the strength. हमें हिम्मत दे, Empower us by thy spirit. हमें आगे लेके चल तेरे आत्मा से। What all comes against us, हमारे खिलाफ जो कुछ भी आ जाए, what all persecutions and trials comes against our faith, कितना भी कष्ट, दर्द और दयानक बातें हमारे जीवन में आने पाए, we will stand strong for the faith we have in Christ. हम दृढ़ता के साथ, बलवानता के साथ हमारे विश्वास में आगे बढ़ेंगे। Lord, thank you for encouraging us and empowering us by thy word. परमेश्वर तेरे वचन से हमें हिम्मत देने के लिए धन्यवाद। You have given us the promise. आपने वाचा दिया है, You have encouraged us that there is a Lord behind us, आपने हमें बताया कि हमारे पीछे एक परमेश्वर है, that we belong to a Lord. आपने बताया कि हम एक परमेश्वर के हैं। There is one who masters our life, एक है जो हमारा स्वामी है, one who controls our life, जिसने हमारा नियंत्रण को ले लिया, one who holds the life of this lifespan. हमारे जीवन को उन्होंने हाथों में उठा लिया है। And we also have heard from your scripture, और हमने साथ के साथ ऐसे सुना है परमेश्वर, there is a praying church behind us. कि हमारे पीछे एक प्रार्थना करने वाला कलीसिया है। Lord, I thank you for our church. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे कलीसिया के लिए। Our church is our strength. हमारी कलीसिया हमारे लिए हिम्मत है। Our fellow believers, our brothers and sisters are our strength. हमारे प्यारे भाई बहन विश्वासी घर हमारे लिए हिम्मत है। We thank you for them. हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए। Hallelujah. Hallelujah. We thank you for thy word. हम परमेश्वर तेरे वचन के लिए धन्यवाद। Help us to stand strong in our faith. तेरे प्रभु जी तेरे विश्वास में दृढ़ता के साथ खड़े रहने सहायता। Father, tonight I bless every man and woman of God, brothers and sisters, in thy name. परमेश्वर सारे लोगों को, सारे भाई बहन को तेरे नाम से आशीष करके प्रार्थना करते हैं। Be with them. सबके साथ रहे, Guide them.
संभाल उनको, Be the stronghold. उनके लिए एक हिम्मत का, दृढ़ता का काम बन जाए। We thank you for hearing our prayers. हमारा प्रार्थना सुनने के लिए In धन्यवाद, Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम में आमेन। Amen. Thank you all for patiently listening to this message. We greet you. We thank you for your valuable time. Once again, we thank dear Pastor Varghese Epan, amen, dear man of God, for allowing us to share the word. आप सबको धन्यवाद शांति से साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे ये वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर के दास को, इस पेज को भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष May God bless you. Good night.